Once again today we're going to look at a characteristic of the human race that is widespread across the world, among people of all temperaments, nations, races, cultures. एक बार फिर हम मानव जाति की एक विशेष विशेषता को देखने जा रहे हैं जो दुनिया भर में स्वभित स्वभावों, राष्ट्रों, नस्लों और संस्कृतियों के लोगों के बीच इतना फैला हुआ है. Something that wreaks havoc and destruction in homes and everywhere. कुछ ऐसा जो घरों और हर जगह तबाही और विनाश का कारण बनता है. And how God can deliver us from it. और कैसे परमेश्वर हमें इससे मुक्ति दिला सकते हैं. I'm talking about anger. मैं क्रोध की बात कर रहा हूँ. In a previous study we saw how we give Satan an opportunity in our life if we don't forgive someone. पिछले अध्ययन में हमने देखा कि अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो हम शैतान को अपने जीवन में एक मौका कैसे देते हैं. An opportunity to get a foothold in our life to destroy us. हमें नष्ट करने के लिए हमारे जीवन में पैर जमाने का एक अवसर. The Bible says another thing that gives the devil an opportunity in our life is anger. Ephesians 4 verse 26 and 27. बाइबल एक और चीज कहती है जो हमारे जीवन में शैतान को मौका देती है, वो है क्रोध. इफिसियों 4 उसका 26 और 27 says, be angry but don't sin. And don't let the sun go down on your anger. And don't give the devil an opportunity. वहाँ कहा गया है क्रोध करो परंतु पाप मत करो और अपने क्रोध में सूर्य अस्त न होने दो और शैतान को अवसर न दो. There is an anger that is sinful and there is an anger that is not sinful. एक क्रोध है जो पापपूर्ण है और एक क्रोध है जो पापपूर्ण नहीं है. We read in Mark chapter 3 that when Jesus went into the synagogue, there was a man there with a withered hand. हम मरकुस 3 में पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु आराधनालय में गए तो वहाँ एक सूखा हुआ हाथ वाला मनुष्य था. The Pharisees were watching Jesus to see if he would heal him on the Sabbath day. और फरीसी प्रभु यीशु पर नजर रख रहे थे कि क्या वह सब्त के दिन उसे ठीक करेंगे. And we read that when Jesus saw the lack of compassion on the part of these Pharisees, Mark 3:5 says, he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart. जब प्रभु यीशु ने इन फरीसियों की ओर से दया की कमी देखी तो हम पढ़ते हैं उसने क्रोध से उनकी ओर देखा, उनके हृदय की कठोरता से दुखी हुए. मरकुस 3:5. He didn't lose control of himself. If he had lost control of himself, he would not have been grieved. उन्होंने खुद पर नियंत्रण नहीं खोया. यदि उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण खो दिया होता तो उन्हें दुख नहीं होता. He had grief and anger at these people. उसे इन लोगों पर दुख और क्रोध था. Jesus was angry when he saw the money changers making money in the name of religion in the temple. He drove them out. जब प्रभु यीशु ने मंदिर में सराफों को धर्म के नाम पर पैसा कमाते देखा तो वह क्रोधित हो गए. उसने उन्हें बाहर निकाल दिया. He did not lose control of himself. A spirit-filled man is full of self-control. We read in Galatians 5:24. फिर से उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण नहीं खोया. आत्मा से परिपूर्ण मनुष्य संयम से परिपूर्ण होता है. हम गलातियों 5:23 में पढ़ते हैं. He does not lose control of himself, but he may be angry when he sees people today like Pharisees lacking compassion for poor suffering people, or when he sees people making money in the name of religion. वह खुद पर नियंत्रण नहीं खोते हैं, लेकिन जब वह देखते हैं कि फरीसियों जैसे लोगों में गरीब पीड़ित लोगों के प्रति दया की कमी है, या जब वह लोगों को धर्म के नाम पर पैसा बनाते देखते हैं तो वह क्रोधित होते हैं. Such anger, where it concerns the glory of God and the good of other people, is not sin. ऐसा क्रोध जहाँ यह परमेश्वर की महिमा और अन्य लोगों की भलाई से संबंधित है, पाप नहीं है. But anger that concerns ourselves, angry because somebody cheated me or somebody's inconvenienced me or somebody's disturbed my plans or made things difficult for me, all such anger is sin or hurt me. लेकिन क्रोध जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे इसलिए क्रोध आता है क्योंकि किसी ने मुझे धोखा दिया है, या किसी ने मुझे असुविधा पहुंचाई है, या किसी ने मेरी योजनाओं में विघ्न डाला है, या मेरे लिए चीजें मुश्किल कर दी है, या मुझे चोट पहुंचाई है. ऐसा सारा क्रोध पाप है. When they slapped Jesus on the face and pulled out the hairs from his beard, he never got angry.
जब उन्होंने प्रभु यीशु के चेहरे पर थप्पड़ मारे और उसकी दाढ़ी के बाल खींचे तो उन्हें कभी क्रोध नहीं आया। He never said anything. He forgave them. उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। So when it says be angry but don't sin, we need to recognize what type of anger is sin and what type isn't. इसलिए जब यह कहा जाता है कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो, तो हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का क्रोध पाप है और किस प्रकार का नहीं। Anger that has got nothing to do with us, only with the glory of God and the good of others, is righteous anger. क्रोध जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है बल्कि केवल परमेश्वर की महिमा और दूसरे की भलाई से है, यह धार्मिक क्रोध है। But anger because of anything connected with us, the way somebody treats me or hurts me, whatever it is, it's always sin. लेकिन क्रोध हमसे जुड़ी किसी भी चीज के कारण, जिस तरह से कोई मेरे साथ व्यवहार करता है या मुझे ठेस पहुंचाता है, चाहे वह कुछ भी हो, यह हमेशा पाप होता है। And then it goes on to say, if you do sin in this way, make sure your anger doesn't stay with you for more than 12 hours. फिर आगे कहा गया है, यदि आप इस तरह से पाप करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका क्रोध 12 घंटे से अधिक समय तक आपके साथ न रहे। God recognizes that a lot of believers are not going to have victory over anger because they're not wholehearted enough. परमेश्वर जानते हैं कि बहुत से विश्वासियों को क्रोध पर विजय नहीं मिलेगी क्योंकि वे पूरे दिल से नहीं हैं। If they were wholehearted, they'd have victory over anger, the wrong type of anger. यदि वे सच्चे दिल से होते तो वे क्रोध, गलत प्रकार के क्रोध पर विजय पा लेते। And because he knows that there are a lot of people who will not choose God's best, he offers them a second best for their salvation. क्योंकि वह जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के सर्वोत्तम को नहीं चुनेंगे, वह उन्हें उनके उद्धार के लिए दूसरा सर्वोत्तम प्रदान करता है। He says, just make sure the sun doesn't set over your anger. वो कहते हैं बस यह सुनिश्चित करे आपके क्रोध में सूर्य अस्त न हो जाए। That means in those days the day was divided into two parts, day and night. उसका अर्थ है उन दिनों दिन को दो भागों में विभाजित किया गया था, दिन और रात में। Day was 6 o'clock in the morning till 6 o'clock in the evening or sunset. दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक या सूर्यास्त तक होता था। And night was from sunset till sunrise next morning. और रात सूर्यास्त से अगली सुबह सूर्योदय तक होती थी। And so when it says here, don't let the sun go down your anger, what it basically means is, don't go to sleep with your anger unresolved or unsettled. इसलिए जब यहाँ कहा गया है अपने क्रोध में सूर्यास्त न होने दे, तो मूल रूप से इसका मतलब यह है कि अपने क्रोध को अनसुलझा या अशांत रखते हुए सोने न जाए। Because in those days without electricity, people went to sleep when the sun set and woke up with sunrise. क्योंकि उन दिनों बिजली के बिना लोग सूर्यास्त में सोते थे और सूर्योदय होने के बाद जग जाते थे। So the word for us today is, don't go to bed with some unresolved, unsettled anger still there in your heart. तो आज हमारे लिए वचन यह है कि अपने हृदय में अभी भी कुछ अनसुलझे अशांत क्रोध के साथ बिस्तर पर न जाए। How careful people are to brush their teeth before they go to bed. Many people, just to ensure that leftover particles of food don't stay within the teeth and destroy their teeth. लोग बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांत ब्रश करने में कितने सावधान रहते हैं। बहुत से लोग केवल यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहते हैं कि भोजन के बचे हुए कण दांतों के भीतर न रह जाए और उनके दांतों को नष्ट न कर दे। How much more careful we should be to make sure that some leftover bitterness or anger is not still there in our heart, not cleansed away, and we go to sleep with that. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कितना अधिक सावधान रहना चाहिए कि जब हम सोने जाते हैं तो कुछ बची हुई कड़वाहट या क्रोध हमारे दिलों में से अभी भी मौजूद नहीं है या साफ नहीं किया गया है। This means that a husband and wife, even if they have a disagreement or a tension between them during the day, should settle it before they go to bed. इसका मतलब यह है कि पति पत्नी भले ही दिन के दौरान उनके बीच कोई असहमति या तनाव हो, उन्हें बिस्तर पर जाने से पहले इसे सुलझा लेना चाहिए। Very, very few believers, husbands and wives, obey this exhortation. बहुत ही कम विश्वासी पति और पत्नियां इस उपदेश का पालन करते हैं। Do you lose your temper? Do you get angry? Well, seek to overcome it. क्या आप अपना आपा खो देते हैं? क्या आप क्रोधित हो जाते हैं? खैर, इस पर जय पाने का प्रयास करें। But until you do,
make sure of one thing, that at least you settle the matter before you go to sleep. लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करते, एक बात सुनिश्चित कर ले कि कम से कम आप सोने से पहले मामले को सुलझा ले। That's the absolute outer limit. Don't go beyond that. वह परम बाहरी सीमा है, उससे आगे मत जाओ। What shall we say then about believers who carry anger and bitterness and hatred in their hearts against others for days and months and years? तो फिर हम उन विश्वासियों के बारे में क्या कहे जो दिनों, महीनों और वर्षों तक दूसरों के प्रति अपने हृदय में क्रोध, कड़वाहट और घृणा रखते हैं। We have to say they have no fear of God, no respect for the word of God. हमें कहना होगा कि उन्हें परमेश्वर का कोई डर नहीं है, परमेश्वर के वचन के प्रति कोई सम्मान नहीं है। When you let anger stay in your heart, it says in verse 27 of Ephesians 4, you give the devil an opportunity. जब आप क्रोध को अपने हृदय में रहने देते हैं, आप शैतान को अवसर देते हैं। इफिसियों 4:27। You're giving the devil a foothold in your life to destroy you, to control you, to do something in your life to bring confusion. आप शैतान को अपने जीवन में पैर जमाने दे रहे हैं ताकि वो आपको नष्ट कर सके, आपको नियंत्रित कर सके और आपके जीवन में भ्रम लाने के लिए कुछ कर सके। Don't give the devil an opportunity. When you turn back to the beginning of the Bible, you see the time when Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden and they had 2 children. शैतान को मौका मत दो। जब आप बाइबल की शुरुआत में पीछे मुड़ते हैं तो आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर निकाले जाने के बाद हम पढ़ते हैं कि उनके 2 बच्चे थे। They were not the only 2, they had many others. वे अकेले 2 नहीं थे, कई अन्य भी थे। But 2 of them are mentioned here, Cain and Abel. लेकिन उनमें से 2 का उल्लेख यहाँ किया गया है, कैन और हाबिल। And they both came and offered an offering to God. Abel offered a lamb and Cain offered some vegetables. वे दोनों आए और परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने एक मेमना चढ़ाया और कैन ने कुछ सब्जियां चढ़ाई। And the Lord accepted Abel, verse 4, Genesis 4:4, and his offering. प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया, उत्पत्ति 4:4। But he did not accept Cain. परंतु कैन को स्वीकार नहीं किया। And there we read of the first sin mentioned after man has left the Garden of Eden. वहां हमने मनुष्य के ईदन वाटिका छोड़ने के बाद उल्लेखित पहले पाप के बारे में पढ़ते हैं। No doubt Adam and others committed many sins before that, but the first sin mentioned in the Bible after man is got out of Eden is anger. इसमें कोई संदेह नहीं कि आदम और अन्य लोगों ने उससे पहले कई पाप किए थे, लेकिन मनुष्य के ईदन से बाहर निकलने के बाद बाइबल में वर्णित पहला पाप क्रोध है। Cain became very angry and his countenance fell. कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका मुख गिर गया। You know, when a man is angry, you can see it in his face. आप जानते हैं जब कोई मनुष्य क्रोधित होता है तो आप इसे उसके चेहरे पर देख सकते हैं। You can't hide it. वो इसे छुपा नहीं सकता। God has made our face in such a way that if you're angry, everybody will know it. परमेश्वर ने हमारा चेहरा ऐसे बनाया है कि अगर हम क्रोधित होते हैं तो सबको पता चल जाता है। And the Lord said to him, "Why are you angry? Why is your face like this?" और प्रभु ने उससे कहा, तू क्रोध क्यों करता है, तेरा चेहरा ऐसा क्यों है? If you also do well and intend well, don't you think your face will be lifted up? You'll be cheerful and not angry. यदि आप भी अच्छा करते हैं और अच्छा इरादा रखते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका चेहरा ऊंचा हो जाएगा, आप प्रसन्न होंगे और क्रोधित नहीं होंगे? Cain did not listen. कैन ने नहीं सुनी। And because he didn't listen to God when God tried to warn him, he went out and became a murderer. क्योंकि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, जब परमेश्वर ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की तो वह बाहर चला गया और हत्यारा बन The गया। Lord said to him, "Sin is crouching at your door." Verse 7. प्रभु ने उससे कहा, पाप तेरे द्वार पर बैठा है। He desires you. Sin desires to have you, but you must master it. यह तुझे चाहता है, पाप तुझे पाना चाहता है, परंतु तुझे इस पर अधिकार करना होगा। That's the first place in the Bible where you hear about victory over sin, preached by God himself. बाइबल में यह पहला स्थान है जहां आप स्वयं ईश्वर द्वारा प्रचारित पाप पर विजय के बारे में सुनते हैं। God preached the first message on victory over sin. परमेश्वर ने पहला संदेश पाप पर विजय पाने का दिया। Sin desires you, but you must master it. You must overcome it. पाप आपकी इच्छा रखता है, लेकिन आपको इस पर जय पाना होगा, आपको इस पर विजय पाना होगा। And there we see the importance of dealing with anger as soon as it comes.
वहां हम क्रोध आते ही उससे निपटने के महत्व को देखते हैं। God warns us, even today, through the Holy Spirit. और परमेश्वर हमें आज भी पवित्र आत्मा के माध्यम से चेतावनी देते But हैं। Cain didn't listen. परंतु कैन ने नहीं सुनी। And when you don't listen, sin just grows. और जब आप नहीं सुनते तो पाप बढ़ता है। It's like a cancer. If you don't cut it out, it'll be worse. और यह कैंसर की तरह है, यदि आप इसे नहीं काटेंगे तो यह और भी बड़ा होगा। And it finally became so bad, he went and killed his brother. और अंततः यह इतना बुरा हो गया कि उसने जाकर अपने भाई को मार डाला। So there we see anger that came out of jealousy. तो वहां हम देखते हैं कि ईर्ष्या से क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ। Here was Cain. He saw God blessing Abel and he couldn't stand it. यहाँ कैन था, उसने देखा कि परमेश्वर हाबिल को आशीर्वाद दे रहा है और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, Particularly because Abel was younger. विशेषकर इसलिए क्योंकि हाबिल छोटा था। Are you jealous of somebody who's younger than you, who's being blessed mightily by the Lord? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं जो आपसे छोटा है, जिसे प्रभु द्वारा अत्यधिक आशीर्वाद दिया गया है? What is your attitude towards him? Do you rejoice like you should if you're a member of the same उसके body? प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? यदि आप एक ही शरीर के सदस्य हैं तो क्या आपको वैसे ही खुशी होती है जैसे आपको होनी चाहिए? Or are you jealous that God's using him and not you? या क्या आप इस बात से ईर्ष्या करते हैं कि ईश्वर उसका उपयोग कर रहा है, आपका नहीं? If so, you're evil. यदि हाँ तो आप दुष्ट हैं। That jealousy will lead to anger and you never know what the final result will be. वो ईर्ष्या क्रोध को जन्म देगी और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अंतिम परिणाम क्या होगा। We read another example in 1 Samuel and chapter 17. हम पहला सैमुएल 18 में एक और उदाहरण पढ़ते हैं। Chapter 18, 1 Samuel 18. We read of the time when David had killed Goliath and all the women came out of the cities of Israel dancing and singing and saying, 1 Samuel 18:7, Saul has slain his thousands and David his 10,000. यह वह समय था जब दाऊद ने गोलियत को मार डाला था और सभी स्त्रियां इजराइल के नगरों से नाचती और गाती हुई आई और कहने लगी, शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने 10,000 को मार डाला। पहला सैमुएल 18:7। And just like it said about Cain, it says about Saul, a man whom God had once chosen to be king. Saul became very angry. और जैसा कि कैन के बारे में कहा जाता है, यह शाऊल के बारे में कहता है, एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने एक बार राजा बनने के लिए चुना था कि वह बहुत क्रोधित हुआ। And an evil spirit finally possessed him because he allowed this anger to go beyond limits. और अंततः एक बुरी आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया क्योंकि उसने इस क्रोध को सीमा से परे जाने दिया। He was angry because of jealousy. वह ईर्ष्या के कारण क्रोधित था। He said in 1 Samuel 18 and verse 8, they have ascribed 10,000s to David, but only thousands to me. उसने कहा, उन्होंने दाऊद के नाम तो 10,000 बताए हैं, परंतु मेरे नाम तो केवल 1,000 बताए हैं। पहला सैमुएल 18:8। And it came about on the next day, an evil spirit came upon Saul. और ऐसा हुआ कि अगले दिन शाऊल पर एक दुष्ट आत्मा आ गई। It's dangerous to let anger continue. क्रोध को जारी रखना खतरनाक है। It can lead to an evil spirit oppressing you. इससे कोई दुष्ट आत्मा आप पर अत्याचार कर सकती है। That's what we see here. And this became so bad that Saul took a spear and tried to kill David. यही हम यहाँ देखते हैं। यह इतना बुरा हो गया कि शाऊल ने एक भाला उठाया और दाऊद को मारने की कोशिश की। Anger can lead to murder. Of course, David escaped, unlike Abel. क्रोध हत्या का कारण बन सकता है। बेशक हाबिल के विपरीत दाऊद बच गया। Jesus Christ has come to save us from sin. प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से बचाने आए हैं। Seek God with all of your heart to be totally free from anger. क्रोध से पूरी तरह मुक्त होने के लिए पूरे दिल से परमेश्वर की तलाश करें। Ask God to deliver you from it completely, totally. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको इससे पूरी तरह से मुक्ति दिलाए। Cry out to God every time you slip and fall. Go to God and say, Lord, I've sinned. Deliver me from this completely. Don't take it lightly. हर बार जब आप फिसल कर गिरे तो परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के पास आए और कहें, हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे इससे पूरी तरह से छुटकारा दिलाए, इसे हल्के में न ले। And Jesus can deliver you totally from this bad habit. प्रभु यीशु आपको इस बुरी आदत से पूरी तरह छुटकारा दिला सकते हैं।